30 اکتوبر 2023 5 ربیع الثانی 1445 مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا براہ راست اردو ترجمہ جو نشر ہوتا ہے اس کو ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل برکات الحرمین پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ مترجم الشیخ عطاء اللہ بن عبد المجید PhD اسکالر مدینہ یونیورسٹی، انہی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ یقیناً تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے ہیں، جو نیکوکاروں کا دوست، مومنوں کا مددگار اور کمزوروں کا معاون و دستگیر ہے، جس نے متقی لوگوں کے لیے اچھا انجام تیار کر رکھا ہے اور زیادتی و سختی صرف ظالموں پر ہوگی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا، بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں، کافروں، مجرموں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے اور کتنی ہی بری لگے۔ اے اللہ، رحمتیں اور سلامتی نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل پر اور پرہیزگار صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اپنے نفوس کو خواہشات سے باز رکھو، یوم حساب سے پہلے اپنے نفوس کا محاسبہ کر لو۔ پوشیدگی و تنہائی میں اور سرگوشی کے وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس و شعور اپنے دل میں قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا کچھ بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ مسلمانوں، اسلام نصرت، غلبے اور تسلط و حکومت والا دین ہے، تو رحمت و شفقت، نرمی اور لطف و مہربانی کا بھی دین ہے۔ یہ دین حقانیت، صداقت، عدالت اور یقین کا علم بردار ہے، تو سعادت مندی اور دنیا و آخرت کی فوز و فلاح کا بھی دین ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسالتوں کی تکمیل کی ہے، اس کے ذریعے ملتوں اور دینوں کو منسوخ کیا ہے، اور اسی کو عزت و نجات والے رستے کا ضامن، جنتوں کی کنجی، اس زندگی میں امن و استحکام، حکومت و خلافت کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ بھی بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن عطا کرے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ مسلمانوں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہی غالب و قادر اور مدبر ہے، سب کام پہلے بھی اور بعد والے بھی سب اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہیں، اور اسی کی طرف سب کام پھیرے اور لوٹائے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کے حکموں پر کوئی حاشیہ نشینی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے ولیوں، دوستوں اور دین کے لیے ہی غلبہ و نصرت لکھ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یقیناً میں اور میرے پیغمبر رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے، اور اس نے اپنے دوستوں اور ولیوں سے نصرت و مدد، غلبہ اور حکومت و تسلط عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا سو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور مزید فرمایا، یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک یقیناً اللہ بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے طے ہو چکی ہے کہ بے شک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے دشمنوں، اپنے اولیاء اور دوستوں پر ظلم کرنے والوں کے مقدر میں ذلت و رسوائی اور پسپائی لکھ رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا، بس جب انہیں ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو ان بستیوں سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا بھاگو نہیں، اور ان جگہوں کی طرف واپس آ جاؤ جن میں تم خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اپنے گھروں کی طرف واپس آ جاؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔
बस वो यही पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उन्हें कटी हुई फसल और बुझी हुई आग की मनींद बना दिया। अल्लाह ताला के बंदो, यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों को आजमाता है, उनका इम्तिहान लेता है, बिल आखिर फिर उन्हें अच्छे अंजाम से हमकिनार भी कर देता है। इरशाद बारी ताला है, क्या लोगों ने गुमान किया है कि वो इसी पर छोड़ दिए जाएंगे कि कह दें कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? हालांकि बिलाशुबा हमने उन लोगों की भी आजमाइश की जो उनसे पहले थे। सो अल्लाह हर सूरत उन लोगों को जान लेगा जिन्होंने सच कहा, और उन लोगों को भी जान लेगा, हर सूरत जान लेगा जो झूठे हैं। और एक जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मोमिनों को उस हाल पर नहीं छोड़ना चाहता जिस पर तुम लोग हो, यहाँ तक कि नापाक को पाक से अलग कर दे। और फरमाया, हर जान मौत का ज़ायका चखने वाली है और हम तुम्हें बुराई और भलाई में मुब्तला करते हैं आजमाने के लिए, और तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। और मजीद फरमाया, वो ज़ात है जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन है जो सबसे ज़्यादा अच्छे अमल करता है, और वही सब पर गालिब और बेहद बख्शने वाला है। सख्त आजमाइश और हक़ व बातिल के मार्के में मोमिनों पर नुसरत इलाही का नुज़ूल कभी लेट भी हो सकता है, जिससे परेशान कुन हालत में इजाफा और तकलीफ़ों कर्ब मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। आसूदगी और कुशादगी का हसूल मौखर हो सकता है, यहाँ तक कि जब नाउमीदी और मायूसी के बादल मुंडराने लगते हैं तो नुसरत इलाही का नज़ूल हो जाता है। इरशाद बारी ताला है, या तुमने गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक तुम पर उन लोगों जैसी हालत नहीं आई जो तुमसे पहले थे। उन्हें तंगदस्ती और तकलीफ पहुंची और वो सख्त हिलाए गए, यहाँ तक कि रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे कह उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। और मजीद फरमाया, और ताकि तुम्हारे सीनों के अंदर छुपी बातों को आजमाए और तुम्हारे दिलों के अंदर पोशीदा राजों को निखारे, और अल्लाह सीनों के भेदों को खूब जानने वाला है। और सुहैब बिन सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का मामला बड़ा अजीब होता है, उसके हर काम में उसके लिए खैर ही खैर होती है। अगर उसे आसूदगी हासिल होती है तो उस पर वो शुक्र अदा करता है, तो ये शुक्र करना उसके लिए बाइस खैर साबित होता है। और अगर कोई उसे तंगी लाहिक होती है तो उस पर भी सब्र करता है, तो ये सब्र करना भी उसके लिए बाइस खैर होता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए कुरान अज़ीम को बाबरकत बनाए और इसकी आयात और ज़िक्र हकीम से हमें नफ़ा पहुँचाए। जो तुमने सुना मैंने वो कहा। मैं अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अज़मत वाले जलालत वाले अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और तुम भी उससे इस्तिग़फ़ार करो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, उसके एहसानात पर, और हर तरह का शुक्र है उसकी तौफीक और इनामात पर। मैं अल्लाह की अज़मत शान का एतराफ़ करते हुए गवाही देता हूँ कि उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं जो उसकी रज़ामंदी की तरफ दाई हैं। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लम की आल पर और सहाबा किराम पर। लोगों, ईमान व कुफ्र का मारिका अल्लाह ताला के जारी तरीक़ों और सुन्नतों में से एक सुन्नत और तरीका है, और अल्लाह ताला के तरीके में हरगिज़ आप कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। इरशाद बारी ताला है, और अगर तेरा रब चाहता तो यकीनन सब लोगों को एक ही उम्मत बना देता, और वो हमेशा मुख्तलिफ रहेंगे, मगर जिस पर तेरा रब रहम करे। और उसने उन्हें इसीलिए पैदा किया, और तेरे रब की बात पूरी हो गई कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सबसे ज़रूर भरूंगा। और जब से इस्लाम की किरणें फूटी हैं तभी से दुश्मनाने इस्लाम काफिर लोग घात लगाए इसकी ताक में बैठे हुए हैं। देहातों में या शहरों में हर जगह वो इसी की इंतजार में रहते हैं, जत्थों और गरोहों के साथ मिलकर इसके खिलाफ मुआहदे और साजिशें करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने दीन और दोस्तों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है, और बुरी गर्दिश व मुसीबत अपने दुश्मनों के लिए रख दी है। इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह ताला चाहता है कि हक को अपनी बातों के साथ सच्चा कर दे और काफिरों की जड़ काट दे, ताकि वो हक को सच्चा कर दे और बातिल को झूठा कर दे, खा मुजरिम नापसंद ही करें। अल्लाह ताला के बंदो, यकीनन अल्लाह ताला मोहलत और ढील जरूर देता है, लेकिन वो गाफिल हरगिज नहीं होता। जालिमों और काफिरों को ढील देता है, मजलूम लोगों के लिए इंतकाम लेता है। इरशाद बारी ताला है, बस आप काफिरों को मोहलत दे दीजिए, उन्हें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। और मजीद फरमाया, और मैं उन्हें मोहलत दूंगा, बेशक मेरी तदबीर बहुत मजबूत है। और मजीद फरमाया, और छोड़ मुझे और उन झुटलाने वालों को जो खुशहाल हैं, और उन्हें थोड़ी सी मोहलत दे। बिलाशुबा हमारे पास बेड़ियां हैं और सख्त भड़कती हुई आग है, और गले में अटक जाने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है।
किसी हिकमत कामिला के तहत काफिरों और जालिमों पर अजाब इलाही और अल्लाह की पकड़ ताखीर का शिकार होती है, ना कि उनकी इज्जत को बढ़ाने के लिए, और ना ही किसी निस्यानो भूल की वजह से मौखर होती है। इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह ताला को हरगिज़ उससे गाफिल गुमान ना कीजिए जो जालिम लोग कर रहे हैं। वो तो उन्हें सिर्फ उस दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें आंखें खुली रह जाएंगी, इस हाल में कि वो तेज दौड़ने वाले, अपने सरों को ऊपर उठाने वाले होंगे, उनकी निगाह उनकी तरफ नहीं लौटेगी और उनके दिल खाली होंगे। और लोगों को उस दिन से डरा जब उन पर अजाब आएगा तो वो लोग जिन्होंने जुल्म किया कहेंगे, ए हमारे रब, हमें करीब वक्त तक मोहलत दे दे, हम तेरी दावत कबूल करेंगे और हम रसूलों की पैरवी करेंगे। और क्या तुमने इससे पहले कस्में ना खाई थी कि तुम्हारे लिए कोई भी सवाल नहीं, और तुम उन लोगों के रहने की जगहों पर आबाद रहे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, और तुम्हारे लिए खूब वाज़ेह हो गया कि हमने उनके साथ किस तरह किया, और हमने तुम्हारे लिए कई मिसालें बयान की। और बेशक उन्होंने तदबीर की अपनी तदबीर, और अल्लाह ही के पास उनकी तदबीर है, और उनकी तदबीर हरगिज़ ऐसी ना थी कि उससे पहाड़ टल जाएं। बस तू हरगिज़ गुमान न कर कि अल्लाह अपने रसूलों से अपने वादे के खिलाफ करने वाला है। यकीनन अल्लाह सब पर गालिब और बदला लेने वाला है। अल्लाह ताला के बंदो, इन मारूज़ात के बाद गुजारिश है कि अल्लाह के बारे में गुमान अच्छा रखो, अपने दीन को मजबूती से थाम लो, अपनी जमात और इज्तिमाइयत के साथ मजबूती से जुड़े रहो, अपने दुश्मनों के खिलाफ यकजान हो जाओ, अपने हुक्मरानों की बात सुनकर उनकी इताअत करो, अल्लाह ताला से अपने दीन पर साबित कदमी का सवाल करो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दीन के जो हकूक़ हैं, वाजिबात हैं, उन्हें अदा करो, तुम्हारे हुक्मरानों के जो तुम पर हकूक़ हैं उन्हें पूरा करो, अल्लाह ताला से डरो और जान लो कि तुम उससे मुलाकात करने वाले हो। फिर उस हस्ती पर दुरूद सलाम भेजो जिनके बारे में तुम्हें अल्लाह ताला ने दुरूद सलाम भेजने का हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, यकीनन अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं, बस ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद सलाम भेजो। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर रहमतें नाजिल की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकतें नाजिल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर बरकतें नाजिल फरमाई। बेशक तू ही तारीफ किया गया बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह, तू इस्लाम और मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमा, शिर्क और जालिमों काफिरों को जलील और रुसवा फरमा। ए अल्लाह, तो इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, अपने मुवहिद बंदों की मदद फरमा, इस मुल्क को और तमाम इस्लामी ममालिक को अमन व आश्ती का गहवारा बना। ए अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों की मदद फरमा। ए अल्लाह, तू हमें अपने वतन में अमन अता फरमा, हमारे हुक्मरानों की इस्लाह फरमा। ए अल्लाह, हमारे हाकिम खादिम हरमैन शरीफैन को खसूसी तौफीक अता फरमा, उनकी ताईद व नुसरत फरमा, उनके ज़रिए दीन को तक़वियत व मजबूती अता फरमा, और उनके ज़रिए कलमा हक़ को जमा व मुत्तहिद फरमा। ए अल्लाह, उनको और उनके वलियाहत को अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा। ए दुआओं को सुनने वाले लोगों, अल्लाह ताला का जिक्र करो, उसका जिक्र बहुत बड़ा है, और उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो, वो तुम्हें मज़ीद अता करेगा। और अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ा है, और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ भी तुम कर रहे हो। ए अल्लाह, हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, अल्लाह हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ का शिकार ना कर देना। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को सुनने वाले हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला जानने वाला है। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और तमाम सहाबा इकराम पर रहमतें नाजिल फरमा। मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जुमा आपने समाअत फरमाया। यूट्यूब चैनल बरकातुल हरमैन पर अपलोड किया गया है। कुरान समझें, कुरान समझाएं, दूसरों को कुरान समझने की तरगीब दें।